इंडिया पाकिस्तान का टीवी पे मैच चल रहा था हॉकी का। उस टाइम गेट से एक वाइट हैट आई, उसमें से 2 आदमी उतरे और दोनों ने सन हैट पहनी थी। मुझे लगा ये तो सोबराज दिखता है। सोबराज करके मेरा हार्ट तो थंप करने लगा। तो मैं चुपचाप जाके उसके पीछे के कुर्सी पे बैठ गया। वो देख रहा था ऐसा ऐसा। और फिर 2 मिनट में मैं प्लान किया क्या करना चाहिए। मैं जाके उसको जोर से पीछे से पकड़ा, जोर से चिल्लाया, चार्ल्स! Who's Charles? Are you crazy? बोला, don't forget I am same झंडे who had caught you in 71. ये हैं महाराष्ट्र फाइल्स, सुनिए सिर्फ रेड एफएम पर। नमस्कार, मैं हूँ आरजे बड्डिया। नमस्कार। और आज हमारे साथ है महाराष्ट्र पुलिस के एक जांबाज ऑफिसर श्री मधुकर जी। झेंडे सर का परिचय जो है वो हमें सबको है, और झेंडे सर जाने जाते हैं एक खूंखार अपराधी, बिकनी किलर चार्ल्स सोबराज को एक नहीं बल्कि 2 बार उन्होंने पकड़ा है। ये तो खैर उनके ज़िंदगी की हम कहे कि सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन झेंडे सर ने इससे भी बड़े बड़े कारनामे किए हैं। लेकिन फिर भी हम झेंडे सर से जब भी मिलते तो बात चार्ल्स की होती है, क्योंकि चार्ल्स को लेकर आजकल जेंजीज और अल्फा में भी, ये जो जनरेशन है उनमें भी बहुत क्यूरियोसिटी, क्योंकि वेब सीरीज़ भी बनी है, फिल्में भी आई है, और हाल ही में सर आपके ऊपर भी फिल्म बनी है जिसमें मनोज वाजपेयी साहब ने काम किया है। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रेड एफएम के महाराष्ट्र फाइल्स में। थैंक यू। तो मतलब आप पहले से ही बेस्ट रह चुके हैं। हाँ। और आपने उस वक्त के, अगर क्रिमिनल की बात करें तो उस क्रिमिनल्स में जो बेस्ट था, मतलब चार्ल्स सोबराज, जिसने 5 देशों की बड़ी बड़ी जेल तोड़ी है, 30 से 32 लेके मर्डर्स किए, बहुत पैसे लूटे। चार्ल्स सोबराज को पकड़ने की ए से लेकर जेड तक की कहानी हमें आपसे सुनी है। Charles Sobraj basically was a car thief. He's actually, his father was Sindhi and mother was Vietnamese. So they had a French passport. And he was grown in Vietnam, but basically he was a criminal, very intelligent criminal. Those days he used to hire all foreigners and steal cars from Afghanistan, Iran, and those countries, and they used to bring by road to Mumbai and sell them. So he was very frequent visitor of Mumbai. He had sold about 4 or 5 cars. He had earned a lot of money, and with that he had made friends. One of his girlfriend was the richest Parsi woman in Mumbai, and he was enjoying his life. So after that, he had gone to Delhi, and Delhi he made some friend with the camera dancer in that Ashoka hotel, and he promised that I will marry you, so you come with me. She accompanied him, and then there he called the jeweler from the hotel that I want to buy some jewelry. I am a prince of Nepal, and then they came with jewelry. And then while they were watching the jewelry, he gave a cup of coffee to the jeweler's man, and he drank that. He became unconscious. He picked up that whole jewelry and ran away with the girl. 2 hours, this man didn't come, so the jeweler came up. They opened the door with duplicate key and found him unconscious, jewelry missing. So they gave a message that fortunately, or for us, unfortunately for him, he had forgotten his passport, and that was Charles Sobraj's passport. So that time he had not changed his names and everything, so it was Charles Sobraj's passport. So they immediately telephoned to the airport that stop this man in case he comes. And then possibly they made an announcement that Mr. Charles Sobraj, there is a message for you, please come. He realized that now something is wrong. He left that girl jewelry and ran. So it was a big sensational news. Those days, Ashoka Hotel was a very famous hotel of Delhi, and Ashoka Hotel robbery case, it was a very big news. And then they tried for many days, they couldn't find anything. So fortunately, government declared award of 1,500 rupees for arresting him. One day, when I was working at Gamdevi police station,
what I had done was, while working in Gamdevi police station, I had arrested one boy. उसने अपने घर में ही चोरी की थी, 30 तोला उसके मदर के चोर करके भागा था. तो बाद में उन्होंने कंप्लेंट दी, हमने उसके अरेस्ट किया. अरेस्ट करने के बाद माँ बाप बोले साहब बच्चा है, अभी उसको बचाओ, क्या करेंगे. तो हमने अभी उधर प्रोविजन, छोटा बच्चा था 20 वर्ष का. सो वी मेड रिक्वेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट दैट ही मे बी रिलीज ऑन पर्सनल बॉन्ड ऑफ गुड बिहेवियर. Accordingly, he was released. But that time, he must have felt that ये झंडे अच्छा आदमी है, whatever, कि अपने मदद किया. Then, but he was criminal, basically criminal है ना. तो वो ऐसा घूमता था, घूमते घूमते चौपाटी पे गया तो 4-5 फॉरेनर उधर बैठे थे. उनको जाके बोला मुझे कुछ काम दो. बोले क्या काम करता है. मैं कुछ भी काम कर सकता है. क्या कर सकता है. तो बीइंग ए क्रिमिनल, वो बोला किसका मारने का है, किसको डाका डालने का है, कुछ भी बोलो मैं करेगा. तो तुम ऐसा काम करता है. हाँ करेगा. तो बोले चलो हमारे साथ. एक्चुअली ही हैड ब्रॉट 4-5 फॉरेनर्स एंड दे वर प्लानिंग टू रॉब एयर इंडिया कैश काउंटर. दैट टाइम एवरीथिंग वाज इन कैश. So every day lakhs of rupees used to be collected there. So they wanted to rob that. He said अच्छा है हमको इधर रॉबरी करने का है, ये पैसा लूटने कैसा. बोला मैं प्लान बनाता हूँ. So he went home and in a day or two he prepared very nice plan कि गाड़ी कितना लगेगा, कितना लोग, कैसा किधर कौन खड़ा होगा, वेपन कैसा लगेगा. He prepared very nice plan he prepared and he gave it to them. Actually that time they were staying in Taj. So वो बोला है तो काम का आदमी है, चलो हमारे साथ. So they took him to Delhi. And Delhi he went there, he saw that there were about 4 or 5 rifles, revolvers, smoke bombs, hand grenades. He was a Gujarati boy. Seeing that, he got frightened. When everyone was sleeping, he picked up 2 revolvers and ran away from that. He came to Mumbai. When he came, he sold one. Then those days, the revolvers, 1971 goes. So he sold one revolver for 5,000 rupees. Then the second revolver, he went to a businessman, a revolver लो. So that businessman को कैसा चलाने का हमको मालूम है. He also never tried revolver. He बोला चलो मैं बताता हूँ. He took him to that S.K. Patil garden near Chowpatty and he was trying to show. He had also never handled revolver. While trying to show him, he actually hit one bullet and that hit that man's chest and he fell down. He felt that I have killed this man. Fortunately, the bullet hit on the right side of that man, not on the left, and he was alive. Some people, good people, they removed him to GT hospital. He wouldn't say that I wanted to buy a revolver. He made a false story that while walking, somebody fired at me. But this man thought that अभी मैं एक आदमी को मार दिया है, अभी तो मेरा तो जान गया. मगर बोला वो उस टाइम झेंडे ने अपने मदद किया था. तो he came to me. उधर मेरे पास आया, वो मैं टेबल पे बैठा था कुर्सी पे, वो आया रिवॉल्वर, साहब रिवॉल्वर. बोला गाड़ो क्या है, क्या करता है, नीचे रख. साहब रिवॉल्वर है. मतलब मालूम है पहले आई जस्ट अनलोडेड दैट एंड देन आई मेड हिम सिट. बोले कहाँ से आया तू तेरे पास. ही टोल्ड मी दिस एंटायर स्टोरी कि साहब हम ऐसा गए थे, ऐसा ऐसा. वो उसका जो लीडर है उसका नाम चार्ल्स सोबराज है. बोला चार्ल्स सोबराज, वो तो यू आर ऑलरेडी वांटेड, गवर्नमेंट हैड डिक्लेयर्ड रिवॉल्वर फॉर अरेस्टिंग हिम. And then, but I thought that after he has run away from them, they may not come. But we should not lose some thread, whatever we get. तो हम बोला साहब वो हमेशा ताज में रहते. So we hired one taxi for 2-3 days and we were just waiting with this man near the Taj. And one evening, one fellow was walking with suit and all that. मुझे मत सही है. I went and grabbed him. So he had a revolver here. I removed that revolver. And then took him to Kulava police station. And after that, I tried to ask him, he would not give any answer. He would not give any answer at all. But we searched him and then we found 5 receipts of different hotels where he had kept all his associates. And then we went and raided those. Then we recovered 3 rifles, 4-5 revolvers, hand grenades, smoke bombs, everything. And that is how we prevented a very major dacoity in Mumbai. And then next time the news was spread that police arrest these people. And then the Delhi police came immediately because he was wanted there. And they came and took away everybody, including that. He pretended that he is in having some appendicitis trouble. तो उसने उधर जाके उसको एडमिट किया हॉस्पिटल में.
और अपना बांग्लादेश वॉर शुरू हो गया 71 का, तो वो वॉर के टाइम ब्लैकआउट हुआ, टेकिंग एडवांटेज ऑफ ब्लैकआउट ही स्केल्ड डाउन फ्रॉम द पाइप एंड रन अवे. तो इट वाज अ बिग न्यूज दैट आफ्टर सो मेनी एफर्ट्स ये भाग गया. Fortunately, we got that reward of 1,500 rupees. The government gave us that reward. We got that reward. I divided the reward amongst all my colleagues, but it was the first reward, good reward we got. And then the news came that he has escaped. After escape, he developed this method of poisoning people in coffee or in food. And slowly, slowly, he went outside of India and he started making friends with girls. Then you take them out for outing, go to a seashore, और उधर नहाने मैंने को गए तो they used to wear bikini. So after that, he used to give them something in food. They used to become unconscious. He would remove petrol from the cars that we have brought, put petrol and burn that car. And whatever belongings is there, you take her key, go to her house, rob everything from her house, run away. Like that, he has developed this technique of murdering people. ऐसा करते करते तो वो पकड़ा गया, फ्रांस में पकड़ा गया, वियतनाम में पकड़ा गया और ईरान में पकड़ा गया. वो जिधर से इधर पकड़ा गया उधर से वो भागा. तो उसका तो न्यूज़ आते रहा कि ऐसा है कोई आदमी बिकिनी पहने औरत को मारता है, उसका नाम पड़ गया बिकिनी किलर वांटेड. FBI sent a red column notice that a bikini killer is on the spree and we should arrest him. So there was a big demand for his arrest. Everybody wanted that he should be arrested. He was a very dangerous criminal. And then, by that time I was transferred to Kulaba police station. This Taj Mahal hotel comes in Kulaba police station. So that security manager came to meet me, Mr. Bob Thomas. So I told him that one criminal, he always visits your hotel and commits very serious crime. And his name is Charles Sobrash. He said, उसने और मैंने ब्लैक बेल्ट का एग्जाम इन टोक्यो में साथ में दिया है. I know him very well. बोला, you should be very careful. He is wanted. 2-3 महीने के बाद उसके होटल में ताज में ही एक फ्रेंच कपल आया था. तो वो उधर रहते थे. 2 days they did not open the door. So they opened with duplicate key. They were found unconscious. When they became conscious, they told that we met. हमने एक कपल से दोस्ती की, वो हमारे पास आए, खाना बिना खाए और बाद में मालूम नहीं, हम तो अनकॉन्शियस हो गए, हमारा सब सामान चला गया. तो इमीडिएटली आई हैड दैट हिज फोटो विथ मी. मैं उसको बताया कि देखो भाई ये, बोले यही आदमी है. मैं तो मैनेजर को बोला, मैं तुमको बोला था, फिर भी तुम्हारे होटल में इसने किया. बोले साहब अभी क्या, सॉरी आई विल बी मोर केयरफुल. अभी मैं और केयरफुल रह गया. ऐसा करके 8-15 दिन के अंदर ही क्या हो गया, वो फिर एक फ्रेंच लड़की को लेके आया. वो शामियाना करके ताज का एक अच्छा रेस्टोरेंट है, उसमें बैठा था. वो ग्राउंड फ्लोर पे है. बड़ा अभी थोड़ा चेंज हो गया हमारा. वो शामियाना ग्राउंड फ्लोर पे था. और उस टाइम तो मोबाइल वगैरह कोई नहीं था, लैंडलाइन ही था. तो उसने उसको देखा, पहचाना. वो गया फ़ोन करने की, कोई हिंदी को बोलेंगे ये आया है करके. वो तो बहुत शार्प है, उसने देखा ये वो पहचानता था उसको. तो इमीडिएटली उसने वो जैसे फ़ोन कर रहा था, वो लड़की को लिया और टैक्सी में बैठ के भागा. बाय गुड लक वो उधर का ताज का जो वॉचमैन है वो बहुत होशियार था. उसने देखा है कि फॉरेनर ऐसा क्यों भागता है टैक्सी में. तो उसने दूसरा टैक्सी किया, उसके पीछे टैक्सी भेजा. अभी वो टैक्सी गई रीस होटल तक चर्च गेट में. वहाँ पे जाने के बाद फिर उसने उधर से फ़ोन किया अपने बॉस साहब, वो अभी फॉरेनर भागा ना, वो अभी रीस होटल में गया है. तो तब तो वो ये मेरे पास आया बॉब थॉमस साहब, चलो चलो चार्ल्स सोब्रास रीस होटल में. हम जीप लेके उधर इमीडिएटली वी रश्ड. बाय द टाइम वी केम ही वाज ऑलरेडी लोडिंग ऑल दी गुड्स. उसकी फ्रेंड्स टैक्सी उसने चेकआउट करके टैक्सी भर के, and he was about to go. Possibly he saw our jeep from a distance. He left that girl and everything and ran in the crowd, churchgate crowd. वो तो भाग गया. मगर हमने जाके वो लड़की को पकड़ा, उसका सब सामान पकड़ा. वो सामान चेक किया तो उसमें रिवॉल्वर्स मिले, चॉकलेट के डब्बे थे तो उनका चॉकलेट के अंदर बुलेट्स थी, वो सब है. और उसके 5-6 फोटोग्राफ डिफरेंट पासपोर्ट, उसका अलग अलग ढंग में उसका फोटो थे, वो सब हमने पकड़ा. वो सब फिर दूसरे दिन बहुत बड़ी न्यूज़ हो गई
कि पुलिस चार्ल्स सोबराज गिव स्लिप टू पुलिस, बट पुलिस अरेस्ट हिज एसोसिएट और रिकवर ऑल दिस, वो सब फोटो भी पेपर में आ गए. सो दैट वाज पब्लिश ऑल ओवर इंडिया. और 1 महीना 1.5 महीने के बाद वो फिर दिल्ली गया. दिल्ली में उसको, वो फ्रेंच था, ये उसको एक फ्रेंच ट्रूप मिला, 5-6 लड़के. उनको बोला कि भाई ये इंडिया का पानी मत पियो, मेरे पास फ्रांस का पानी है, मैं तुमको फ्रांस का पानी भी देता हूँ. ऐसा बोल के उनसे दोस्ती किया, उनकी होटल में गया और फिर उनको सबको पानी पिलाया, ड्रग वाटर. तो सब अनकॉन्शियस हो गए. तो उनका सामान जमा कर रहा था, जब वो मैनेजर ने ताबड़तोड़ पुलिस को फ़ोन किया, सब ऐसा बात है. तो इंस्पेक्टर तुली दिल्ली पुलिस का वो आया, उसको पकड़ा, फिर अरेस्ट हो गया. फिर बिग न्यूज़, चार्ल्स सोबराज अरेस्टेड इन दिल्ली करके न्यूज़ आ गया. अभी वो हमने 71 में पकड़ा था, उसका अभी तक पेश ही नहीं हुआ था केस का. तो मेरे को समन्स आ गया टू अटेंड 30,000 कोर्ट. अभी बाय दैट टाइम आई वाज ट्रांसफर्ड टू CID. CID was a complaint close. So my wife said, "We are going to Delhi, I'll also come." I said, "Come." So I took my wife, and when we gone to 30,000 court, when I had arrested, he was a छोटा मुजरिम था. अभी तो एकदम इतना मर्डर, 31 मर्डर किया, एकदम डेंजरस क्रिमिनल. तो उसको एस्कॉर्ट करने के लिए ऑलमोस्ट अ प्लेटून विथ 1 इंस्पेक्टर स्टेन गन लेके ऐसा. तो मैं ऐसा जोर, मेरा आवाज़ ऐसा बड़ा ही है, मुझे बोला कि एक फालतू क्रिमिनल को एस्कॉर्ट करने के लिए इतना प्लेटून. तो मेरा वो आवाज़ सुन के 2 बाजू में वाले थे, बोले तुमको मालूम है क्या कौन है? मतलब मालूम है, चार्ल्स सोबराज है, इसको मैं पकड़ा था. उसको लगा कि इनको यही पागल कुत्ते ने काटा है क्या है, ऐसा बात करता है. तो बाय दैट टाइम आई वाज कॉल्ड इन द कोर्ट टू गिव एविडेंस. सो दे आस्क्ड माय वाइफ, ये कौन है, क्या है? ही टोल्ड कि ये इन्होंने पकड़ा था, इसीलिए अभी इनकी पेशी के लिए आए. तो बाय द टाइम आई फिनिश माय एविडेंस एंड केम आउट, सब अरे साहब कैसा पकड़ा? बोला हाथ से पकड़ा. तुम्हारा हाथ लोखंड का है क्या? बोला ऐसा कुछ नहीं. अरे दैट टाइम माय वाइफ रियलाइज दैट शी हैज मैरिड, उनको एक अच्छा लड़के के साथ शादी किया है. तो सो बट दैट वाज अनदर ओकेजन व्हेन मैंने उसको देखा, फिर उसके साथ बात करने की कोशिश किया. वो बहुत रफ आदमी है, किसको मानता ही नहीं. मैं बोला बाबा, मैं उसको बोलने गया, ऐसा क्यों बुरा काम करता है, ऐसा कर. वो बोला माइंड योर बिजनेस, यू जाओ. तो ऐसा मेरे को उड़ा दिया उसने. मगर उसको वो फिर उसको नज़दीक से देख के उससे बात करने का एक मौका 76 में बाद में मिला. बाद में 76 से उसको वो केस में सजा हो गया. ये वॉज अंडरगोइंग इंटरव्यू में चल रहा था उसका. तो 16 मार्च 1986 को उसने बोला आज मेरा बर्थडे है, हम पार्टी करेंगे. बाय दैट टाइम 10 बरस में उसने लॉ का स्टडी किया था, सब जेलर के स्टाफ से बहुत अच्छा दोस्ती किया था. उसको सब फैसिलिटी उधर देते थे, उसको कंप्यूटर भी दिए थे. वो उधर वापस नहीं, इतना नहीं तो BBC का 4th चैनल का उसका इंटरव्यू, पूरा फिल्म निकाला उसके ऊपर जेल में. दैट वाज शोन ऑन BBC का 4th चैनल पर बताया था. So one Christian lady, actually that time I was transferred to Bandra, one Christian lady came to me with that cassette. Sir, see this, there's a movie on this dangerous man and how they permitted from jail. What can I say? But I brought this cassette for you. She brought that cassette for me. 16 मार्च को क्या हुआ, उसने बोला कि आज मेरा पार्टी है, मेरा बर्थडे पार्टी देगा. He had actually asked his friends to bring cake. तो केक लेके आए और केक तो सबको खिलाया. तो सबके सब गार्ड्स हो गए. एवरीबडी बिकेम अनकॉन्शियस. रिपीट, 3 कार्स आई, उसके फ्रेंड्स ने लाए. 16 आदमी वो 3 कार में बैठ के जेल से भाग गए. इट वॉज अ बिग सेंसेशनल न्यूज़. जेल, तिहाड़ जैसी इतनी बड़ी जेल, वहाँ से इतना हो गया वर्ल्ड में पूरा कि क्या इंडियन जेल से अथॉरिटीज़ क्या है, इंडियन पुलिस क्या करती है. क्रिटिसिज्म एवरीथिंग came in paper. That time, media also plays very important role. So that time, afternoon courier paper, Mr. Contractor, he published a news item with my photo and those 3-4 photos of Charles Sobraj. That there is one inspector in Mumbai who knows Charles Sobraj. That was possibly read by my Director General, Mr. Job. Otherwise, he has about 5,000 inspectors under him. You would not know who did what work. But that was registered in his mind. उनके दिल में वो बैठ गया. That is how media plays some role. फिर 29 मार्च को रेलवे पुलिस ने एक सरदार जी को पकड़ा.
और उसको सर्च किया, गाड़ी में बैठने सर्च किया तो सर्च में उनको एक हैंड ग्रेनेड मिला। बोले तुम कहाँ से लाया क्या? वो कुछ बात ही नहीं करता, बात कुछ नहीं करता। तो उसको सर्च किया तो उसके इधर एक रिसीट मिली, पंचरत्ना होटल पनवेल। तो पुलिस टुक हिम टू पंचरत्ना होटल पनवेल। उधर मिस्टर संजय पोद्दार उधर उनको बताया ये ऐसा ऐसा आदमी इधर रहता था क्या? बोला इसके साथ 5-6 आदमी रहते थे हमारे पास, 6-7 दिन रहे, अभी वो तो चले गए इधर से। मगर हमारे वॉचमैन ने ना, उनके पास मोटरसाइकिल था, वो मोटरसाइकिल का नंबर लिख के रखा है। उसने वो मोटरसाइकिल का नंबर दिया, गोवा का मोटरसाइकिल का नंबर दिया, वो नंबर। तो बोले अभी फिर कभी वो बोले आएंगे तो लोकल पुलिस को बताओ। 2 दिन में वो त्यागी करके उनका एक एसोसिएट था, वो गया था दिल्ली से कोई लड़कियां लेके आने को इनके साथ मिलने के लिए, मगर वो लड़कियां रिफ्यूज टू कम। तो ये वापस आया, बोलने की वो लड़कियां नहीं आती है। आया तो वो पूछा मेरे दोस्त किधर है? तो संजय पोद्दार ने बहुत अच्छा एक्शन लिया। बोले अब भी वो बाहर खाना खा के घूमने गए, अब बैठो। आपको रूम खोल के दिया, उसको खाना दिया, पुलिस को बुलाया। तो लोग पुलिस ने उसको पकड़ा, फिर रेलवे पुलिस को खबर किया, रेलवे पुलिस ने जाके उसको लाया। तो उसका इंट्रोगेशन करते करते उसको वो तरस गया। बोले मेरे को क्यों तकलीफ करते हो? मैं थोड़ा सोबराज के साथ भागा हूँ, मैंने सोबराज के साथ भागा हूँ, मैं उसको गाड़ी लेके गया था उठाने के लिए। तो दे सेड सोबराज, it was a big sensational news. First thing they did was they telephoned to our DGP, Mr. Zog. Sir, we have some clue about Sobraj. He immediately remembered कि अपने पास एक ऑफिसर है, क्यों दो सोबराज। सो ही गिव मी, सुबह 7 बजे मुझे मैसेज आया कि ताबड़तोब डीजी साहब को बोलो। अभी डीजी साहब तो हम कभी जिंदगी में, बहुत बड़ा ऑफिसर, मेरे लिए तो बहुत बड़ा ऑफिसर है, वो कभी मिलते भी नहीं हमको। उन्होंने बुलाया, मैं डर गया क्या बात है, कुछ मेरा कुछ गलती तो नहीं हुआ, क्यों बुलाया? फिर भी कहा मैं सब, तो मैं गया तो उधर पोर्च में हमारे कमिश्नर साहब, सोमन साहब, वो मंडोजा साहब, देवर वेटिंग। अरे कम कम कम, डीजी इज वेटिंग फॉर यू। आई वाज सरप्राइज। उधर दक्षता के ये ऑफिस है उधर ग्राउंड फ्लोर पे, वो पुलिस का मैगजीन दक्षता, उसके एडिटर मिस्टर अरविंद पटोड़न करके थी। वो ही वॉज माई मेंटर, मेरी गुरु है। तो मैं उनको जाके पहले मिला, बोला साहब मेरे को ऐसा ऐसा बुलाया, क्या बात है? तो आपको मालूम नहीं? बोला नहीं, वो सोबराज की कुछ न्यूज़ है, इसीलिए आपको बुलाया, वहाँ पे पकड़ेंगे। वो एक प्रकार का गुरु का आशीर्वाद मिला। तो मैं डीजी साहब के पास गया, फिर ये सब स्टोरी उनको बताया कैसा क्या। तो बोले तुम क्या सोचते हो, क्या कैसा करना चाहिए? बोला साहब वो त्यागी का इंटरोगेशन में वो अहमदाबाद गए थे, बड़ौदा गए थे, बॉम्बे में बॉम्बे सेंट्रल में 3 दिन रह के गए थे। आफ्टर रनिंग नेवर न्यू। और ऐसा सब जगह में फिर हम बोला साहब वो क्या पुलिस को बिल्कुल जुमानता नहीं, क्योंकि पहले उसको मालूम था ये पकड़ सकता है अपना एयर इंडिया के ऑफिस के ऊपर, फिर भी वो आया। तो पुलिस को बिल्कुल जुमानता नहीं है। वो जो गांव में गया, वो गांव में हम एक टीम भेजेंगे। बोले वो अच्छा कितना? बोला 5 टीम चाहिए। तो हमने 5 टीम बनाया। कौन ऑफिसर? तो मेरे जो उस टाइम मेरे साथ थे उनका सबका नाम दिया, उनको बुला के लिया, वो सबको। तो बोले, मैं बोला साहब वो तो सब 5 स्टार में रहते, हमारे पास तो इतना 5 स्टार में रहने का पैसा नहीं। बोले डोंट वरी, जो इतना पैसा चाहिए। तो बोला साहब कम से कम, उस टाइम सस्ता ही थी, तो 10-10 हज़ार रुपये। बोले ओके, सबको हमको 10-10 हज़ार रुपये दिया। और फिर वो बोले उसका इंट्रोगेशन में ऐसा मालूम पड़ा था कि वो उसका गोवा में जाएगा, क्योंकि गोवा का मोटरसाइकिल गोवा से एक छोटा बोट से बड़ा क्रूज में शिप करेगा, और उसकी औरत अमेरिका में है, उसको जाके मिलेगा। ऐसा क्लू था इतना। तो साहब मेरे को बोले अच्छा तू पहले गोवा जा, क्यों तू उसको अच्छा पहन जाता है। तो मेरे को 10 हज़ार रुपये दिए। और फिर हमारे जॉइंट कमिश्नर मेनन साहब थे, उनको बोले अभी तुम कमिश्नर ऑफिस, डीजी ऑफिस इज डिफरेंट, कमिश्नर ऑफिस क्राफर्ड मार्केट उधर सोमन साहब से हम गए। उधर जाने के बाद तो अभी क्या पुलिस स्टेशन, मैं जब भी अग्रीपड़ा पुलिस स्टेशन में काम करता था, पुलिस स्टेशन और क्राइम ब्रांच में थोड़ा क्रेडिट के लिए कंपटीशन होता है। तो जॉइंट कमिश्नर क्राइम थे, उनको लगा है इसको क्यों भेजने का। वो मेरे को बोले तू ऐसा कर, तू इधर इंट्रोगेशन के लिए बहुत अच्छा है, तू बम्बई में रह, मैं कोई दूसरा ऑफिसर भेजता हूँ। तो मैं तो 10 हज़ार दे, वो 10 हज़ार मैं साहब को दिया और उधर से चलाया। जब तक मैं कभी प्लेन में भी नहीं बैठा था। साहब मुझे बोले थे तुम प्लेन से जाओ, तो मैं बोला अभी अपना चांस गया, प्लेन में भी नहीं बैठने का मिलेगा अभी, ऐसा सोच के मैं गया नीचे, फर्स्ट फ्लोर से नीचे आया। और फिर बोला कम से कम साहब को फीस बोलेगा कि
डीजी साहब ने बोला है आप उनको बताओ कि भाई मैं उसको नहीं भेजता, मैं दूसरे को भेजता हूँ। ऐसा करके मैं वापस वो रिमांडर साहब के पास गया। उन्होंने सोचा 2 मिनट, बोले नहीं तू जा। फिर उन्होंने मेरे को वो फिर 10,000 रुपया लिया। तो हमारे सीपी साहब ने मेरे लिए प्लेन टिकट बुक किया था। तो मुझे और बाद में मेरे 2 ऑफिसर और 2 कांस्टेबल दूसरी कार से आए। मैं प्लेन से गोवा गया। गोवा जाने के बाद हम ताज में जो केरकर मिस्टर ताज उसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनको भी कमिश्नर साहब ने फ़ोन किया कि हमारा ऑफिसर है कि उसका बंदोबस्त ठीक करो। तो मैं इधर जाके ताज में रुका, क्योंकि वो ताज में रुकता था। फिर 2 दिन हम ताज में कोशिश किए, वो बाकी ऑफिसर भी आए, कुछ नहीं। तो मुझे लगा अभी ताज वाले बोले 2 दिन आपको रखा, अभी तो आप चेकआउट करो। फिर हम गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में गए। ये 2 ऑफिसर थे। हम अभी एक क्ल्यू था कि मोटरसाइकिल है, तो गोवा में मोटरसाइकिल टैक्सी जैसा पायलट करके चलते हैं। तो हम हर उधर जाने का कि वही मेरा भाई ये गाड़ी लेके भाग के आया है, तो देखा क्या। ऐसे बहुत से जगह कोई रिप्लाई नहीं आया। मगर एक जंक्शन पे मुझे एक छोटा 16-17 बरस का लड़का मेरे को बोला तुम बहुत बंडरबाज है रे। बोला क्या है? बोले ये गाड़ी पिकअप कलर का नया गाड़ी है, अभी चेन कवर भी नहीं बैठाया है, वो फॉरेनर चलाता है, तुम काला है वो गोरा है, तुम्हारा भाई कैसा हो सकता है? मेरे को इतना ये हो गया कि भाई इसको 100%। तो मैं कमिश्नर साहब को फ़ोन किया कि साहब अभी तो हम खाली 2 ऑफिसर है, मेरे को मदद भेजो। तो उन्होंने फिर 5 ऑफिसर, दूसरी गाड़ी, ये सब मेरे को मदद के लिए भेजे। फिर अभी वो फ़ोन करने वाला है अपनी वाइफ को। तो उस टाइम तो मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, STD वगैरह कुछ नहीं, कुछ अपने को बुक करना है तो यू हैव टू गो टू CTO। तो हम पणजी के CTO में हम गए, वहाँ रिक्वेस्ट किया कि हम ऐसे बम्बई के ऑफिसर है, ऐसा इंक्वायरी कर रहे हैं, तो हमको सब लिस्ट दो कि कितना 16 तारीख से आज तक कितने कॉल उधर हो गए अमेरिका में। तो वहाँ एक मैनेजर्स करके एक बहुत अच्छा क्लार्क था, वो बोला मैं लिस्ट देता हूँ, मगर इधर कोई फॉरेनर बुकिंग के लिए आता नहीं। गोवा में ओकोकुरो नाम का एक रेस्टोरेंट है, वो सब फॉरेनर उधर जाते हैं क्योंकि उधर से ताबड़तोड़ कॉल मिलता है, लाइटनिंग मिल जाता है, तो एवरी फॉरेनर उधर ही जाते हैं। आप उधर भी कोशिश करो। उसने अपने हिंट बहुत अच्छा है, इंडिया इंपॉर्टेंट हिंट। तो हम लोग क्या दिन भर मोटरसाइकिल ढूंढते थे, शाम हो गई तो वो कोकरे में जाके बैठते थे। अभी बैठने की क्या टाइम पास कैसा करने का, टीवी देखो ये करो, यानी शाम को 7 बजे से होटल बंद होने तक रोज हम बैठते थे। पर मैं हमेशा वो एक कुर्सी ऐसा पकड़ के वो मेन गेट के ऊपर देखते रहता था। तो 6 अप्रैल को शाम को 10:30 बजे इंडिया पाकिस्तान का टीवी पे मैच चल रहा था हॉकी का। सब एनग्रॉस थे वो देखने। मैं अपना उधर देखता था गेट के ऊपर। उस टाइम गेट से एक वाइट हैट आई, उसमें से 2 आदमी उतरे और दोनों ने नाइट में अपना सन हैट पहनी थी। तो मैं देखने लगा सन हैट पहन के क्यों लोग आ रहे, ऐसा जैसा वो आने लगा, थोड़ा हाथ में उसकी बैग भी थी। ऐसा देखा, मुझे लगा ये तो सोबराज दिखता है। सोबराज करके मेरा हार्ट तो थंप करने लगा कि वो तो मुझे पहचानता था। अगर वो मेरे को देखेगा तो उसके हाथ में बैग था, उसमें क्या ग्रेनेड हो सकता है, वो उधर से भी मेरे को फायर करके मारेगा। मैं चुपचाप वहाँ से उठा और एक दीवार के पीछे हट गया, छुप गया। बाद में वो देखा क्या करते हैं, वो हॉरना में क्या कि केक टेबल में वो डेविड हॉल उसका एसोसिएट यूरोपियन वो बैठा, एक बाजू हो ये बैठा। तो मैं चुपचाप जाके उसके पीछे के कुर्सी पे बैठ गया। वो देख रहा था ऐसा ऐसा, और ऐसा चुपके से मैं, और फिर 2 मिनट में मैं प्लान किया क्या करना चाहिए। तो एक कागज़ के ऊपर लिख लिया कि 2 ऑफिसर बाहर जाके टैक्सी ड्राइवर को पकड़ो, 2 ऑफिसर कंपाउंड, बहुत बड़ा कंपाउंड है, उधर शादी चल रही थी, तो उधर कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो 2 उधर रहो और 2 मुझे मदद करने के लिए आ जाओ। ऐसा लिख के दिया। वो वेटर को बोला वो लोगों को जाके दो, उसने दिया। वो ऑफिसर उठे उधर जाके, वो जैसा ही ऑफिसर भागे टैक्सी वाले के साथ बात कर रहे थे, तो उसको लगा मेरा टेम्पररी कस्टमर का इनक्वायरी ये क्यों करता है, तो उसको बताने के लिए वो भागते भागते इधर आने लगा। मैं बोला ये अगर इसको मिला कुछ बोला तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं ताबड़तोड़ अपने, बाय द टाइम मेरे वो 2 ऑफिसर मेरे मदद के लिए आए थे, अमोलिक और कामत करके, वो आ रहे थे। मैं जाके उसको जोर से पीछे से पकड़ा, जोर से चिल्लाया, चार्ल्स, Who's Charles? Are you crazy? बोला डोंट फॉरगेट आई एम सेम झंडे वर्ड कॉट इन 71।
एक दफ़े उसको मालूम हो गया कि अपना राज खुल गया तो नर्वस हो जाता है, तो स्लम्प इमीडिएटली। तो आवाज़ मेरा सुन के सब वो लोग भाग, मैं बोला कोई आगे आने का नहीं, सब पीछे हटो। और फिर हम लोग तो, हमको श्योर नहीं था कि हम इसको अरेस्ट करेंगे, कोई हैंडकफ वगैरह नहीं लेके गए थे, मगर हमारे रिवॉल्वर के कॉर्ड से उसको बांधा, क्योंकि वो ब्लैक बेल्ट है, अभी क्या करेगा मालूम नहीं। वो होटल वाले को बोला तुम्हारे पास कोई भी रस्सी बिस्सी है कात्या वो दो, उसको ऐसा कंप्लीट जैसा बेडिंग बांधते हैं ना ऐसा बांधा, और उसको हमारे कार के सीट पर बैठे सुलाया, उसके ऊपर 2 कांस्टेबल उठाए और उनके हाथ में 2 डब्बा दिया, क्या कुछ भी सी शो करने का इसमें, इसको हिलने नहीं देने का। तो मैं कमिश्नर साहब को फ़ोन किया कि अरे साहब मैं अभी उसको पकड़ा है, क्या बोलता है? मतलब नॉट 100% सर, 1000%। झिंडे आई एम सो हैप्पी, यू कम इमीडिएटली, डोंट वेट, डोंट इन्फॉर्म एनीबडी, यू कम स्ट्रेट, आई कम डाउन माई सेल्फ टू रिसीव यू। इतना वही कमिश्नर साहब इतने एक्साइट हो गए। तो फिर ताबड़तोड़ हमने वो गाड़ी शुरू किया। तो बाद में वो होटल वाले ने गोवा पुलिस को फ़ोन किया, तो गोवा पुलिस का एक ऑफिसर आया, चलो तुमको आईजी साहब ने बुलाया। तो मैं एक ऑफिसर उनको बोला कि साहब के साथ जाओ, उनको बोलो साहब हम इंक्वायरी करें, अभी तक कुछ मालूम नहीं। हम तो उनके पास से जल्दी भागना चाहते थे, तो हम ताबड़तोड़ गाड़ी लेके हम गोवा के बाहर आ गए। गोवा के बाहर आए तो रात भर 12 बजे से हम ट्रैवल करते थे, सुबह 6 साढ़े 6 बजे हम पोलादपुर पास हो गए। उधर से मेरे को याद आ गया, इधर तो रायगढ़ दिखता है इधर। तो मैं तो ऐसा कल्पना किया कि शिवाजी महाराज हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैं बोला महाराज ये आपने वो औरंगजेब का नाक काट के आप इधर आए थे, हम अपना देश का नाक काटने वाले को पकड़ा है, हम एक मावड़ा है, हमको आशीर्वाद दो। तो हमको ऐसा लगा कि महाराज आशीर्वाद देते। तो हम सब गाने लगे, गर्दा महाराष्ट्र महाराज जय जय महाराज, ऐसा करते नाचते गाते हम लोग 2 बजे पनवेल आ गए। तो कमिश्नर तो उनके पास जाने का बात ही नहीं आया मेरे को। उधर पनवेल के जंक्शन के ऊपर ही 7-8 ऑफिसर, 2-4 कार्स हमको रिसीव करने के लिए, उसको लेने के लिए खास प्लेन आया था बीएसएफ का दिल्ली से, उसको इंक्वायरी करके वो प्लेन में लेके गए और हमको बोले डायरेक्ट डीजीपी साहब के साथ उनके पास चलो। उनके पास गए तो जब तक सब उस टाइम खाली दूरदर्शन था, तो मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब न्यूज़ में मेरा इंटरव्यू। अभी मेरा हिंदी भी कुछ मैंने ऐसा पकड़ा वगैरह, लोग हंसते थे, और उस टाइम तो इट वॉज अ बिग न्यूज़। तो दूसरे तीसरे दिन अमूल ने एक बड़ा होर्डिंग किया। अमूल ने होर्डिंग किया, अटके पार झंडे इन मराठी। और वो होर्डिंग लता जी के घर के सामने एक होर्डिंग है। उन्होंने देखा एक अटके पार झंडे मराठी में। वो मोहन वाघ को फ़ोन किया, चंद्रलेखा की प्रोड्यूसर, अरे मोहन मला झिंडेला भेटायचं रे, म्हणजे आपण उसका एक रिसेप्शन रखेंगे। तो हाँ बोले, 44th एनिवर्सरी थी दीनानाथ की, तो एक स्पेशल प्रोग्राम रखा, पूरी मंगेशकर फैमिली, ड्रामा रखा था, एक बिग क्राउड। एंड वो उसके मिस्टर गडकरी आए थे, उसके राइटर कानिटकर आए थे, सब बिग फंक्शन में। तो सब लोग बोले लता जी को आप कुछ बोलो। आज मैं कुछ सुनने वाली नहीं हूँ। 50 बरस में कभी भी अमूल ने मराठी में एडवर्टाइज नहीं की थी, मगर पहली दफ़ा अटके पार झंडे ऐसा, तो वो झंडे का स्टोरी मुझे सुनना है। तो ऐसा उन्होंने बोला, और बाद में मैं सब स्टोरी वगैरह बोला। फिर बाद में उसने मेरा सत्कार वगैरह किया। तो बाद में हम मेरी फैमिली भी साथ में सब बैठे, तो एक बाजू में लता जी, एक बाजू में आशा जी, मेरा ऑटोग्राफ। तो इतनी बड़ी धस थी, फिर ऑटोग्राफ ले रहे। तो लता जी का डायरी थी, उन्होंने, आशा जी के पास डायरी नहीं थी, वो 100 का बंडल निकाला। तो रे इस पे सही करो। बोला 100 का बंडल, आपको क्या, मैं 10 मेरे सब बच्चों को देने का चाहिए, आप ऑटोग्राफ दे 8-10 करो मेरे को। तो बंडल के ऊपर मैं 100 के नोट के ऊपर, अरे वो तो हमारे लिए तो बड़ी चीज़ थी। अभी लता जी ने ऐसा तो फिर रोज़ ऐसा पेपर में आते थे, सब मैगजीन में फ्रंट कवर में। तो 1 मई यानी थोड़े ही दिन में 1 मई में राजीव गांधी बम्बई विजिट के लिए आए थे। मैं बंदोबस्त के लिए नॉर्मल औगरेली जंक्शन पे खड़ा था। वो जैसी गाड़ी ऐसी जाने लगी, वो बोले गाड़ी रोको, मेरे को उसके मिलने आए। तो सब गाड़ी रुक गई।
तो शायद उन्होंने सिक्योरिटी वाले ने बोला साहब इधर नहीं, राजभवन में बुलाएंगे। मगर सबको मालूम होगा, अरे राजीव गांधी झंडे को देख के गाड़ी रोका नहीं है। अरे फिर दूसरे दिन वो मुलाकात की, हमको कांग्रेचुलेट किया है। वो तो ये बड़े लोगों का बड़ेपन है। तो मिस्टर रिबेरो हमारे कमिश्नर, मेरे पुराने कमिश्नर थे, वो तभी होम सेक्रेटरी थे। उन्होंने अरुण नेहरू को खत लिखा कि वो होम सेक्रेटरी जैसा शाह है वैसे वो होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे। उनको बोला यू शुड कांग्रेचुलेट मिस्टर झंडे। और मुझे खत लिखा कि मधु, वो मेरे को मधु मधु बोलते थे प्यार से। तो बोले आई न्यू दैट ओनली बॉम्बे पुलिस कैन डू सच गुड वर्क एंड पर्टिकुलरली मधु कैन डू इट एंड आई हैव टोल्ड अरुण नेहरू टू कांग्रेचुलेट यू, प्लीज टेल मी वेदर ही कांग्रेचुलेट यू। ऐसा उन्होंने मेरे खत वो खत लिखा उन्होंने। तो दूसरे दिन अरुण नेहरू आए दिल्ली से और फिर उन राजभवन में हमको फिर बुलाया। उन्होंने पूरा स्टोरी सुना। ऐसा तो जब तक से कम अभी मैं 50-60 तो इंटरव्यू दे चुका हूँ। और उसके ऊपर अभी ये मूवी भी बनाई है ओम राउत ने, इंस्पेक्टर मेरे नाम की भी मूवी है। तो मगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये केस में राइट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल टू कांस्टेबल, रेलवे कांस्टेबल, एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड। और जैसा फुटबॉल मैच में हर एक आदमी बॉल आगे आगे, मतलब एक आदमी गोल पोस्ट के नज़दीक होता है, वो बॉल ढकना उसका अंगीस ने गोल किया, ऐसा मेरा नाम हो गया। सब ने कंट्रीब्यूट किया, इन्हें मीडिया ने किया, टेलीफोन एक्सचेंज वाले भी किया, वो मोटरसाइकिल वो होटल वाले ने किया, ऑल कांस्टेबल्स ऑफिसर एवरीबडी कंट्रीब्यूटेड, वो मेरा नाम हो गया। मगर आई ऑलवेज से इट्स नॉट माय क्रेडिट, इट इज क्रेडिट ऑफ एवरीबडी। ये हैं महाराष्ट्र फाइल्स, सुनिए सिर्फ रेड एफएम पर।